Assalamu alaikum, dear viewers. Hope that you all will be fine. Today I'm going to share a new idea with you people. Most of the people are commenting here on our YouTube channel that you should introduce your classes, or you should share your classes in Urdu as well. So today I have a suggestion. I have an idea in my mind. If we make our channel trilingual, that is English, Urdu and Pashto. So what will be your comments? What will be your response? What will be your opinion about it? For example, if we take a class simply in English, explain it in English, then in Urdu and then in Pashto. So how will be this? This is only my idea. If a few people are agree with me, okay, not agree, so we will keep continue our classes in Pashto as we are taking it. Okay, so what am I saying? Let me explain it with an example. Let's suppose there is a topic tense. If we explain the tense in English first, that what is tense, this is a common topic. We have a lot of more topics as well, but the tense is a common topic. If we explain the tense first in English, then in Urdu, then in Pashto. So you know that a lot of people are watching our channel nowadays, mashallah, alhamdulillah. We are very much thankful to all the viewers, and we are very much thankful to Almighty Allah for His such a great blessings. Okay, so if we take the classes in English, then Urdu and Pashto, so more and more people will get benefit of it, as you know that the knowledge you have about it will be, we will be responsible on the day of judgment. This will be questioned, this will be asked it, how much knowledge did you have, and did you deliver it or not? So such kind of questions will be there. Let me explain my opinion with an example, that if we are discussing about tense, that what is tense? Simply we can define the tense in English that the relation between time and action is called tense. This is maybe we can define it through many ways, but this is the simplest definition, that the relation between time and action is called tense. Okay, in tense we will be discussing three major things. The first one is subject, the second one is object, the third one is verb. Okay, now what is subject? Subject, doer of an action, is called doer of an action. Doer of an action is called subject. What is object? Receiver of an action. Receiver of an action is called object. Receiver of an action is called object. And what is verb? Simply we can define verb that action word, an action word, an action word in a sentence. An action word in a sentence is called verb. Okay, this is the simple definition in English. A simple, we can simply define these things in English, that tense is the relation between time and action, subject, doer of an action is called subject, object, receiver of an action is called object, and verb, an action word in a sentence. आते हैं उर्दू की तरफ. उर्दू में हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे सिंपली, देन उर्दू में कि टेंस क्या है. टेंस हम टेंस ज़माने को कहते हैं, इसे उर्दू में ज़माना कहता है. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के मुताबिक द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड, काम और वक्त के दरमियान, काम और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ को ज़माना कहते हैं. उर्दू में हम ये इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि काम और वक्त के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, इसे हम ज़माना कहते हैं. ज़माने में हम तीन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे. पहले हम सब्जेक्ट को हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं. ओके, फ़ाइल क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला. काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं. जो कोई भी काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में हम फ़ाइल कहते हैं. उर्दू में हम कहेंगे कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं. द सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मफ़ऊल, इसे हम उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं. रिसीवर ऑफ एन एक्शन हम उर्दू में इस तरह कहेंगे कि जिस पर काम किया जाता है. I'm sorry, I'm not a very good expert in Urdu. I know a little bit English, but I'm very much weak in Urdu, so we will improve our Urdu as well. हम अपनी उर्दू को भी इम्प्रूव करेंगे, आपसे भी कुछ सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे. एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स विल टेक प्लेस, तबादला होगा. तो ऑब्जेक्ट हम मफ़ऊल कहते हैं. रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस पर काम किया जाता है. उर्दू हम कहते हैं जिस पर काम किया जाता है.
वी विल एक्सप्लेन इट थ्रू अ सेंटेंस, एक आम जुमले से हम इसे इसकी वजाहत करेंगे। ठीक है, ये हो गया मफऊल। वर्ब हम फ़ेल इसे कहते हैं या आम ज़बान में हम इसे काम कहते हैं। ओके, इन एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस, जुमले में जो लफ्ज़, हम उर्दू में इस तरह कहते हैं कि जुमले में जो लफ्ज़ काम को या किसी अमल को ज़ाहिर करता है, काम या अमल को ज़ाहिर करता है, हम इसे फ़ेल कहते हैं। फ़ेल कहलाता है या फ़ेल कहते हैं। ये वर्ब हर वो चीज़ जुमले में, हर वो लफ्ज़, चीज़ नहीं, हर वो लफ्ज़ जो हमें काम ज़ाहिर करता है हम उसे फ़ेल कहते हैं। तो उर्दू में हम सिंपली इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं पश्तू की तरफ। राजू पे पुख्तू के एक्सप्लेन को दा मुंग संग वायु टेंस मुंग से तो टेंस ज़माना वक्त मुंग वायु द्री किस्म दे द ज़मानी यौ प्रेजेंट फॉर्म दे, प्रेजेंट वही मौजूदा ज़माना चिकम मौजूदा ज़माना, पास्ट मुंग वो तो उर्दू की माजी वायु, पे इंग्लिश के वो तो पास्ट वाई, और फ्यूचर मुस्तकबल, पे पुख्तू की माजी तमुंगा तेरह शवी ज़माना वायु, दे तमुंगा मुस्तकबल, पे पुख्तू की दे फ्यूचर तमुंगा रवाना ज़माना वायु। दा द्री ज़मानी मुंगा दिसी वायु ची ज़माना वही सता, पे इंग्लिश की मुंग दिसी वायु द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड टेंस। उर्दू की वायु काम और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ को ज़माना कहते हैं। पुख्तू की मुंग वायु ची द कार और द वक्त पर मेंस की चिकम ताल्लुक़ ते कम कार पर कम वक्त की कीगी शवे दे वस रवान दे कीगी या कीगी बा नु दी ताल्लुक़ तो मुंगा सवायु ये तो मुंगा ज़माना वायु। वस ची मुंग कल द टेंस खबर को पदी की बजमुंग सर द्री सीजू नहीं, यौ ब सब्जेक्ट ही उर्दू की वतमुंग फ़ाइल वायु, पुख्तू की वतमुंगा कारकउन के वायु। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड, कम कस चिकार कई नो अगत मुंगा फ़ाइल वायु। मफऊल रिसीवर ऑफ एन एक्शन चिपचा व निकार की गी देता मुंगा सवायु मफऊल वायु। और वर्ब मुंगा वायु कारता कुमकार चिकीगी नो देता मुंग सवायु देता मुंगा वर्ब वायु। मसलन जदलते वो जुमले लिखम है कि अहमद इज ईटिंग अ मैंगो, अहमद एक आम खाता है। अहमद यौ आम खुरी, पुख्तू की मुंग दिसी होय अहमद यौ आम खुरी। वस राजू दी जुमले ले चिदल तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दा सीजून कम दी नो अहमद चिदे नो दा कार सो कई दा अहमद कई नो दिस इज सो कॉल्ड सब्जेक्ट या दिस इज नोन एज सब्जेक्ट, दे तमुंगा सब्जेक्ट वायु फ़ाइल होता वायु दा कार अहमद कई। सही दा ईटिंग दा ईटिंग कार दे कना, एक्शन मुंग तखई कना एक्शन नो दा वर्ब दे दा फ़ेल शो। सही दा और कार पचा बांधी कीगी प मैंगो बांधी कना नो दा ऑब्जेक्ट शो दा रिसीवर ऑफ एन एक्शन दे दा कार पदी मैंगो बांधी कीगी नो दा यो सेंटेंस दे पदी की जमुंग सर सब्जेक्ट अहमद शो हेल्पिंग वर्ब बल यो दगरे या ऑक्सिलरी वर्ब तमुंगा दा इज चिदे नो दा हेल्पिंग वर्ब दे या दा ऑक्सिलरी वर्ब दे। सही दा नो दा जमा यो राय दा मैं भी टिकी मैं भी गलती दा सीजवेम का परस करे जमुंगा दा if we launch a trilingual system in our channel, so what will be your opinion, what will be your suggestion, what will be your comments, please do inform about it, please do inform us about it। तासु कमेंट्स आपके कमेंट्स क्या होंगे अगर हम अपने चैनल को ट्राई लैंग्वेज मतलब तीन ज़बानों में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें, उर्दू इंग्लिश में, फिर उर्दू में और फिर पश्तो में ब्याप उर्दू इंग्लिश की उर्दू की ब्याप उख्तू की नुस्तासु दे बारे की सराय दे मुंगर देना इन्फॉर्म कई द नेक्स्ट लेक्चर पूरी इजाज़त वाड़म द अल्लाह पामान।